Hello, Yes, ma'am. good morning. Good morning, ma'am. So, unexpected class? Yes. Yes. Okay. So, what about your activity? On Saturday, I gave you one activity to write about the moments of happiness and sadness when you were genuinely happy for others in spite of your own failure, and you were sad because of others' success. Did you do that? Did you do that exercise? No, No. Why? मैम चेक अभी किया है, पहले नोटिफिकेशन नहीं देखा था मैंने। क्या चेक अभी किया है? एक्टिविटी के लिए? मैम जो एक्सपेरिमेंट आपने असाइनमेंट 1 और 2 इसमें अपलोड करा है ना, हाँ बेटा, वो तो असाइनमेंट दिया है। असाइनमेंट तो आप लोगों से बात हो गई थी ना उसमें लास्ट क्लास में कि आप हाँ वो असाइनमेंट वाला मैं एग्जाम्स के बाद आप देंगे। सो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको बाद में सबमिट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो एक्टिविटीज हैं वो आप बीच बीच में करते रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेशंस हैं, एक मैंने आपको बताया था, हालांकि उसका जो उसकी पिक लेके मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगी, और उसके साथ एक और एक्टिविटी है, एक और प्रैक्टिस सेशन है, वो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। एंड बीच में आपको जब भी लगता है कि ठीक है अभी आप फ्री हैं एंड यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ इन उस टाइम पे इस प्रैक्टिस सेशन को या इस एक्टिविटी को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? बट यू हैव टू रिकॉर्ड all these things because you have to submit these practice sessions as well, ठीक है? तो बाद में आपको ये सारे असाइनमेंट, सारे प्रैक्टिस सेशंस अभी आपको सबमिट कर रहे हैं, तो प्लीज मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द सेम। आप उसको आज करें, कल करें, बीच में आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आप पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है, उस वक्त आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं आराम से बैठ के, ठीक है? whenever you feel like that you need to spend some time with yourself, कुछ अच्छा टाइम अगर आपको अपने साथ थोड़ा सा भी स्पेंड करना है, in that case you can do this. Okay, so our next topic is how many Harshits are there in your class? 3. How many of you have joined? Roll number 19, serial number 19, Harshit, and 32, Harshit Gupta. Harshit Gupta, Harshit Chauhan, good. Harshit Kumar, Yes, ma'am. good beta. Okay, so our next topic is harmony of self with the body. In last class, we understood human being as a coexistence of self and body. What is a human being? Human being is the coexistence of these two entities, self and body, and both have their
different requirements, different needs. Both have their own ways to accomplish or to fulfill the needs. But these two are complementary to each other. They complete each other. Without one, there is no existence for the other. Without self, there is no body at all, and without body, there is no use of self. So they have to work in coordination for each other, for the fulfillment of requirements of each other, and for the happiness of each other. And to ensure two basic aspirations. What are two basic aspirations of human beings? Happiness and prosperity. So, to fulfill these two aspirations, it is necessary for a person to be in harmony. इससे पहले हम इस टॉपिक के साथ आगे जाएं, I would like to ask you one more thing. Are we working according to animal consciousness or human consciousness? Are we working according to human consciousness or animal consciousness? Ma'am, human consciousness. Human consciousness. How? Ma'am, because we feel, we think, we care, and Yes. Yes, beta, go ahead. yes, ma'am, means human can feel, human support, humans like they feel, they show affection towards other So this life is species, not only on human, but also on yes. animal, So this is human plants. consciousness. Hmm? Yes, Yes, this ma'am, is human and consciousness. yes, ma'am. What good answer? Yes. किसको पूछे जाए अभी? Shiv. Shiv, what is animal consciousness, beta? Shiv, are you there? एक तो मेरी क्लास का सबसे अच्छा फायदा ये है, मुझे ये पता चल जाता है कि क्लास में कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं है. Yes, Kartik Gupta. Good. Anusha. Sorry, Anushka. Anushka Arora. Yes, ma'am. Yes, Anushka. What is animal consciousness? Ma'am, I don't know. Arushi. Arushi Gupta. Sneha. Yes, ma'am. Yes, Sneha. What is animal consciousness, beta? Animal consciousness. Yes, beta. जैसे एनिमल जो ऐसे मतलब इंटरनल थिंकिंग जो उसकी होगी. Okay, first let me explain this thing to you. We human beings are facing a lot of problems, lot of difficulties, mental tensions, disharmony, because we are not working as per human consciousness. Because human consciousness, yes, we want to work according to human consciousness, but somehow we are not working. Because what is animal consciousness? Animal consciousness, they think about themselves. They have limited needs. We as human beings have different types of
needs, but some basic needs are there which are common to both. For example, when an animal feels hungry, what does it need? Food, fodder. Once a cow gets a fodder, does it think about something else? Does it think about something else? No, ma'am. No. और उसको जो भी चारा उसको मिलना है, जो भी फॉडर उसको मिलना है, वो उसको कैसा भी मिल जाए? Yes, ma'am. By any means. By any means. But we human beings need food. We have our own choice for food. And once we get our appetite or hunger fulfilled, we begin to think about other things. जैसे ही हमारी भूख शांत होती है, हम कुछ और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. We think about, as Asa said, we think about our relationships. We think about feelings. We think about emotions. We think about hundreds, thousands of other things. अब इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है. So animals need only two things, mainly two things: food and protection from weather. ठीक है? But we human beings, we need food, shelter or protection, clothing, etc. And beyond these basic needs, we have to fulfill other needs as well, and we think about other things also. And mainly those other things are relationship, relations, happiness, prosperity, physical facilities. This is human consciousness. The problem is, at present time, in present scenario, we are thinking about physical facilities only. So to some extent, we are working as per animal consciousness. कि जो हमें चाहिए बस वो हमें मिल जाए by any means. We don't think about proper means. We don't think about the relations. We don't think about the impact of our behavior on others. ठीक है? Anyway, so this is human consciousness and animal consciousness. Animals don't need anything else. They don't think anything else beyond their basic needs. But we human beings have to think about other things. As soon as we get one desire or one aspiration or one need fulfilled, we begin to think about others. Okay. Now our next topic is harmony in the human being, harmony of self with the body. As we have understood that self is the doer, self is the seer, self is the seer, self is the thinker, and self is the enjoyer. And it is body who acts accordingly, who acts as per the instructions, directions sent by the self. So body acts according to the needs of I. There is harmony among the parts of the body. Our body follows only the permission of I, and there is a strong relation between I and the body. So these four things are clear to us. There are two entities, self and body acts according to the needs of I, because the basic needs of I are prosperity and happiness. And our body is also a self-organized unit. That's why there is harmony among the parts of the body. Our body follows only the permission of I or instructions of I, and there is a strong relation between I and the body.
Now, how to maintain harmony with self? There are mainly two ways. वैसे हम इसको एक ही कहते हैं. There are two components of this method. These two components are Sanyam and Swasthya. Sanyam means self-control and Swasthya means health. ये दोनों टर्म्स इसी तरीके से एग्जाम में कई बार आ भी जाती हैं. संयम और स्वास्थ्य. संयम एंड स्वास्थ्य. तो संयम सेल्फ कंट्रोल, स्वास्थ्य हेल्थ. तो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? रूपम. Dhupam, what is self-control? Kabir Mittal. यस मैम. Yes, Kabir, what is self-control? मैम beta? कि हम अपने जो भी इमोशंस और थॉट्स हैं वो अपने मतलब फेस पे नहीं आने देते. That is अपने मतलब self-control. कंट्रोल. That is hiding your emotions. नहीं मैम कि जैसे कि Hmm. Yes, beta. हमें जैसे कि To some कभी extent, yes. गुस्सा वगैरह आता है Good. तो हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं बेसिकली. ठीक है. Good. और वो मैं कह हर्ष? रहा था कि अपने फेस पे आने नहीं देते. ठीक है. Yes, Harsh का hand raised था. Harsh, do you want to say something? मैम सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना. मतलब अगर हमें ज्यादा गुस्सा है तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करके उसको शांत करना चाहिए. अच्छा, सिर्फ गुस्से को ही शांत करना सेल्फ कंट्रोल होता है? मेरे हिसाब से तो यही. अच्छा, अगर आपका हम जिससे और आपकी किसी चीज पे जिससे आपकी हम बनती नहीं जैसे है, अपने अगर एग्रेशन को कंट्रोल करना. चलिए एग्रेशन और ताकि वो गुस्सा भी किसी को सेम चीज है. गुड. ठीक है. किसी को हर्ट ना करे. ओके. धृति. According to me, self control is understanding the difference between the desire and the need, and then satisfying yourself to think it whether I really need it, whether should I buy it, and then controlling your mind and गुड. देखिए अभी ज्यादातर सब बच्चों ने एक ही एक्सप्रेशन दी कि एंगर को या एग्रेशन को कंट्रोल करना. लेकिन कई बार तो आपके बहुत अच्छे इमोशंस होते हैं. अगर हम सारे ही इमोशन को हम कंट्रोल कर सकते थे, जैसे कि मान लो हम बहुत बार होता है कि हम कभी नाराज होते हैं या किसी से दुखी होते हैं, तो वो भी तो एक इमोशन है. तो सारे ही इमोशन को करना कंट्रोल और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, वो होता है एक सेल्फ कंट्रोल. सो सेल्फ कंट्रोल सिर्फ गुस्से के लिए नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई फ्रेंड है जिससे आपकी बहुत ज्यादा नहीं बनती है, मतलब आप हैप्पी नहीं है उसके साथ, रिलेशंस ठीक है, ठीक ठाक चल रहे हैं, वो अगर फेल हो जाता है और आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो क्या उसके सामने वो खुशी आप एक्सप्रेस कर पाएंगे? वहां भी कंट्रोल जरूरी है. ठीक है. तो कई बार खुशी भी कंट्रोल करना होता है, गुस्सा तो करना ही करना है. ठीक है. सो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल मीन्स टू कंट्रोल impulses and reactions. Impulses, intense feelings. अब वो feelings किसी भी तरीके की हो सकती हैं. ठीक है. Feelings of happiness, joy, sorrow, grief, sadness. Can you understand कि हमारे एक जो हम बेसिक कैटेगरी हम लेते हैं, सिर्फ हमारे पास 2-3 फीलिंग्स ही जो इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं वो होती है, या तो खुशी है या दुख है. ठीक है. लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस हैं. एंड फॉर एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ इमोशंस. कि हमारा स्पेसिफिक एग्जैक्ट इमोशन क्या है उस वक्त, और अगर आप उससे थोड़ा सा भी अलग बिहेव करते हैं या अलग रेस्पॉन्ड आप करते हैं,
that affects your relations. खैर ये आपका एक अलग टॉपिक है, what types of emotions or feelings are there, जो आपका सेम में आएगा. We will do that in that semester. So self-control means, self-control is the ability to control impulses and reactions. It is not some kind of negative and limiting behavior. कुछ लोगों को जनरली क्या लगता है कि एक नेगेटिव या बिहेवियर जो लिमिटिंग बिहेवियर कि अपने बिहेवियर को लिमिट में कर देना, दैट इज सेल्फ कंट्रोल. नो. When self control is used wisely and with common sense, it becomes one of the most important tools for self improvement and for achieving success. Now, self control with self means the identification of responsibilities, as Dhruti said, to identify the desires, to identify the needs, and to identify the means. So it is the responsibility, it is the feeling of responsibility as well. So it can also be identified, or it can also be termed as the feeling of responsibility in the self for nurturing, protection, and right utilization of the body, because it is the responsibility of self, and that is self-control. If your self is not able to do or to exercise this self-control, it may allow body to do whatever it wants. Result, there will be disharmony, a number of diseases and problems, and ultimately no happiness. So if your self is responsible enough to identify the desires, the needs, and how to fulfill these desires and needs, in short, it is responsible for nurturing, protection, and right utilization of the body, it can ensure all happiness. Now, this self-control can also be defined as the control of mind and its desires, urges, and emotions. Now, again, self-control constitutes of two main aspects. And these two aspects are willpower and self-discipline. Willpower and self-discipline. What is willpower? Willpower is the ability to control or reject unnecessary or harmful impulses. Willpower हमारी कहाँ काम आती है? जहाँ हम नेगेटिव चीजों को या जो अननेसेसरी हैं या हार्मफुल हैं, मीनिंगलेस हैं, हम उनको रिजेक्ट कर पाएं. The ability to reject everything that is harmful, that is useless, that is meaningless. That is willpower. So first constituent of, or the first aspect of this self-control is willpower. It is the ability to arrive at a decision and follow it with perseverance until its successful accomplishment. ऐसा नहीं है सिर्फ आपने 10 सेकंड के लिए ये विल पावर दिखाई उसके बाद फिर आप ढीले पड़ गए. नो, यू हैव टू फॉलो इट टिल यू अचीव योर डिजायर. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू लूज सम वेट, तो आपको विल पावर आपके अंदर इतना होना चाहिए दैट यू कैन रिजेक्ट एवरीथिंग दैट इज हार्मफुल. यू शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज बेनिफिशियल. आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, लेकिन टू लूज योर वेट यू हैव टू अवॉइड चॉकलेट्स. सो यू मस्ट हैव द विल पावर टू रिजेक्ट चॉकलेट्स टिल यू गेट योर डिजायर. ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आपने नहीं खाया, नेक्स्ट डे आपने फिर खा लिया. सो यू हैव टू फॉलो इट continuously for some time. It is the inner power that overcomes the desires to indulge in unnecessary and useless habits. It is that strength that overcomes inner emotions, inner emotional and mental resistance for taking action. So willpower is very, very important.
हर फील्ड में, चाहे वो आपका पर्सनल है या आपका प्रोफेशनल कोई काम है या प्रोफेशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई प्रोफेशन, ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके पर्सनल फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, सोशल फील्ड में, एवरीवेयर यू नीड दिस विल पावर. Willpower strengthens your energy in a positive way to complete the action. And this energy may be physical energy, it may be mental, it may be emotional, or it may be your spiritual energy. आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे एकदम याद आ गया. What is a human being? ये तो चलो ठीक है, coexistence of self and body. लेकिन उसके अलावा अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखें तो बॉडी ह्यूमन बीइंग क्या है? कोई भी चीज इस दुनिया में क्या है? Like a machine. नहीं, मशीन नहीं बेटा. एवरीथिंग. An ह्यूमन object. बीइंग कोई और चीज? यस. An object. वो वर्ड भी मैंने भी यूज किया था, एनर्जी. एवरीथिंग इज एनर्जी. आप, मैं, आपके फ्रेंड्स, जो भी कुछ हमारे आसपास है, एवरीथिंग इज एनर्जी. खैर इसको बाद में देखते हैं क्योंकि बहुत एक बड़ा टॉपिक है. इसके बारे में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर एक दिन डिस्कशन करेंगे, ठीक है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया दैट वी आर इन एनर्जी और कैसे हम दूसरी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत इजी हो जाएंगी. सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज विल पावर and second is self-discipline. What is self-discipline? It is the companion of willpower. It endows with the stamina to persevere in whatever one does. It develops the ability to withstand hardships and difficulties. So self-discipline enables you to withstand, to face hardships and difficulties in getting your desire. Self-discipline refers to the ability to train our body, mind, emotions, and spirit to perform as per a schedule or routine. And again, it is very necessary for self-control. Self-discipline makes a person strong enough to reject immediate gratification in order to gain something better or something more useful. So this is self control. Self control ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है. सेल्फ कंट्रोल constitutes of two things. You have to name these two: willpower and self-discipline. Two things for achieving harmony with self, self-control, and what was another one? Starting में ही बताया था. Two things are there: संयम and Swasth. स्वास्थ्य. So self-control and health. इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल और द वेज हाउ टू एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल, वो आप लोग से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इज गुड हेल्थ, स्वास्थ्य. गुड हेल्थ इज मस्ट टू हैव हार्मनी विद द सेल्फ और विद द सोल. ये बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं. अभी तक हमने सेल्फ कंट्रोल की बात की थी. सेल्फ कंट्रोल, इफ सेल्फ कंट्रोल इज नॉट देयर, जो मैंने आपको विषय बताया भी था, इफ सेल्फ इज नॉट एबल टू कंट्रोल द डिजायर्स, द टेम्पटेशंस, द डायरेक्शंस, what will be the result? There will be disharmony in body and self, because in that case self will allow body to go on its own way. अगर वो देर तक
सोने का मन कर रहा है आपका, देर तक आप सो रहे हैं, ठीक है। जो आपका मन कर रहा है वो आप खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका मन कर रहा है आप वो कर रहे हैं, आपकी बॉडी को जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं। सेल्फ का अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, साथ साथ बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं है, द रिजल्ट इज डिसहार्मनी। इन द सेम वे, good health is must to ensure harmony with the self, because if your body is not working properly, it will affect harmony with self. अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है या पैर में चोट लग जाती है तो क्या आपका मन ठीक रहता है? नहीं, ठीक है, you don't feel happy. एक अलग ही फीलिंग आपको रहती है, पेनफुल फीलिंग आपको रहती है, वो थोड़ा पेन अगर ओवरकम भी हो जाता है तब भी आपका ध्यान उस तरफ ही लगा रहता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग एल्स। आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करना चाहते, बिकॉज योर सेल्फ एंड बॉडी इज नॉट इन कोऑर्डिनेशन। सो गुड हेल्थ इज मस्ट टू हैव हार्मनी विद द सेल्फ। ए हेल्दी बॉडी वर्क्स प्रॉपरली फॉर द सेल्फ। Health is the condition when every part of the body is performing its expected functions properly. At the time of creation of World Health Organization in 1948, health was defined as being a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases or infirmity. यानी आपकी बॉडी में किसी बीमारी का ना होना ही सिर्फ हेल्थ नहीं है, ठीक है। इट मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। And you know it very well, what is physical health? It is related to our body. Mental health related to our emotions and cognitive skills. And social well-being is, or social health is, our ability to interact with others, to maintain good relations, and to live in harmony with others. So with physical, social, and mental well-being, if our body and self are working accordingly, we can call ourselves healthy. So these are the main constituents of the process which is required or which is essential to maintain harmony with the self. Now, next is harmony with family. What is a family? What is a family? Ma'am, our well-wishers. Our well-wishers. Okay. Good. Anyone else? क्या मैम? Anyone else? What is the family? क्या? What is the family, beta? आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क की है? कहाँ पे करनी है मैम? यस Google मैम, कर दी Classroom पे? गूगल क्लास। मैम नहीं करी है। अभी नहीं की है। ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका अटेंडेंस का? यस मैम। ओके बेटा, सेंड इट टू मी। ओके मैम। 30 hours. Yes, what is family? Ma'am, our relatives constitute family, like Hmm. mother, father, siblings, relatives of my mother, mother and father, like. Good.
ठीक है, इस टॉपिक को भी हम हालांकि बाद में करेंगे, जो आज हमारा 5th लेक्चर है उसमें करेंगे इसको कंप्लीट, ये आज आपका हो जाएगा सिलेबस। अभी यहाँ पे कुछ जनरल है जो डिस्कस कर लेते हैं अभी। What are the main values which are essential to maintain harmony in family? क्या क्या मेन चीजें आपको लगता है? Your own views. कोई ट्रस्ट भी यहाँ पे एंड बेटा ऑनेस्टी। trust and ऑनेस्टी। good. Trust and honesty. What is trust? भरोसा और यकीन। Yes, भरोसा और यकीन, ठीक है। स्मार्ट क्लास है इस मामले में, तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई जनरल चीजें हम डिस्कस करते हैं, इसको फिर हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आप आई थिंक वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 minutes and after that you must rejoin. How many times you say thank you to your parents? Please raise your hand जल्दी से। आप में से कितने लोग हैं जो पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं? कभी कभी सॉरी Yes. तो जरूर बोलते हैं। हम्म, हम थैंक यू नहीं पर सॉरी तो जरूर बोलते हैं। हाँ सॉरी तो अक्सर बोल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी, यस चैतन्य, यस चैतन्य बताइए बेटा, यस मैम, बोलते हैं। कब बोलते हो? हम जब वो कुछ देते हैं कुछ देते हैं या कुछ ठीक है? करते हैं हमारे लिए, कोई जेस्चर। आप कोई मुझसे सरप्राइज, कोई कितने, गिफ्ट है, या कहीं जब हम बाहर गए रेस्टोरेंट में तो वहां से लौट रहे हैं तो उस हिसाब से। हे भगवान, आप में से कितने बच्चों ने अपनी मम्मी को सुबह उठ के, वो आपके लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, अभी तक आप लोग स्कूल में थे, सुबह आपका टिफिन तैयार करना, कभी आपने उनको इस चीज के लिए थैंक्स बोला है कि आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, या आज टिफिन बहुत अच्छा था? तब से तो नहीं हुआ मैम, बट अभी मतलब लॉकडाउन के बाद से ऐसा होता है कि जैसे सपोज अगर कोई कोई खाना भी दे रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू, ऐसे ही फालतू में। अच्छा वो फालतू फालतू में मतलब नहीं है बेटा ओपी ब्रो, बोल ओपी ओपी भाई ओपी। बोल देता बट फीलिंग के साथ नहीं। अच्छा फीलिंग के साथ नहीं होता। चलिए अभी रिजाइन कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज वी टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। समटाइम्स वी टेक दीज थिंग्स एज अवर ओन राइट। हमें क्या लगता है कि मदर जो भी कर रही है आपके लिए, या फादर जो भी आपके लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स ओवरऑल जो भी आपके लिए कर रहे हैं, चाहे वो उनकी अर्निंग है या उनकी मेहनत है या उनका कोई और कंट्रीब्यूशन है या उनका सेक्रीफाइस है, we don't identify that thing, we don't realize that thing, because हमें क्या लगता है, it is their responsibility, ये उनकी ड्यूटी है ऐसा करना। What is our duty? Do we think about our own duty? मैम सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि कोई चीज रूटीन में हो रही होती है तो फिर मतलब उसकी ना वैल्यू खत्म हो जाती है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड टाइम में। ठीक है, आप एक चीज बताइए, अगर आप एक दिन ये कोई एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, यू वांट अप्रिसिएशन फॉर दैट, लेकिन अगर मम्मी आपके लिए कुछ भी अलग सा भी अगर बनाती है तो उस दिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते? मैं करता हूँ ऑनेस्टली। करते हो? वेरी गुड। बाकी लोग करते हैं नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो एक बार जरा करके देखिए। करते हैं मैम, इतना तो कर ही सकते हैं और कर। गुड। मैम अगर खाना अच्छा लगता है तो बोलता हूँ कि अच्छा है और बहुत बहुत अच्छा था, थैंक यू, और अगर बुरा लगता है तो फिर वो ही बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन बुरा अगर बना है तो Honestly, क्या, नहीं बुरा अगर बनता है, खराब आपको खराब लग रहा है टेस्ट में, तो क्या आपको क्या लगता है कि मम्मी की इंटेंशन रही होगी कि आज खराब बनाना है?
नहीं, इंटेंशन की बात नहीं है, मतलब हम जैसे होता है ना कि कभी नमक ज्यादा हो गया या वो समझ रहे हो हाँ ना, वही तो बस हाँ वैसे जो कुछ भी ना। हो गया जो भी हो गया ये आपके अकॉर्डिंग नहीं बना, तो क्या लगता है कि मम्मी की इंटेंशन तो वो नहीं थी ना? नहीं मैम। ठीक है, यानी वो वो तो उनसे बाई चांस हो गलती से गया, हो जाता है ना। गलती से हो गया, बाई चांस हो गया, किसी और रीजन से हो गया, मे बी शी इज इन सम टेंशन कि वो उनको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो, या वो उसमें थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो और यही चीज बेटा हर रिलेशन में होती है। अगर आपके टीचर्स आपको डांटते हैं, किसी चीज के लिए आपको टोकते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपको समझा रहे हैं, या बाहर कोई आपको ऐसा कुछ बोल रहा है कि जो आपको उस वक्त बुरा लग रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन बिहाइंड दैट। सबसे पहला काम, किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने से पहले सबसे पहले ये सोचिए व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। उनकी उस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इज इट रियली बैड और इज इट गुड? इफ इट इज गुड, एक्ट अकॉर्डिंगली। इफ यू रियलाइज कि नहीं, उसकी इंटेंशन सच में ही खराब है आपको ऐसा कुछ बोलने में, या जो भी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है या कुछ गलत हो गया है, अगर इंटेंशन सच में खराब है, देन यू शुड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम रिएक्ट तो करते हैं बट वी डोंट ट्राई टू सी द इंटेंशन। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत जनरली होता है। हर्षित ने बहुत एकदम ओपनली ये चीज बोली है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू हर्षित, कि अगर खराब बंदा है तो आप तुरंत बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन सी चीज है, सभी के साथ होता है। क्या बना दिया आज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मुझे थोड़ी नहीं ना खाना बोलते हैं ये। मैम, वो तो फिर वो तो एकदम रूड हो गया ना। हाँ लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसे, बेटा मुझे नहीं खाना ये। मैं ऐसे तो नहीं बोलते मैम। मैम जब बहुत छोटे थे तब ऐसा कर दिया करते थे, बट अब तो समझ आ जाता है कि लाइक कितना एफर्ट लगता है कुकिंग करने में एंड यस, सर्व करने। गुड। मैम अगर ऐसे बोलेंगे तो डांट भी तो पड़ेगी, हम ऐसे तो नहीं। मैम ऐसे बोला ना, मैम किचन से कुछ सामान फेंकते हुए आएगा। हम थप्पड़ी दो। शिव ये कितनी बार एक्सपीरियंस है तुम्हें ऐसा बेटा? मैम मैम भी मैम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे को, ये लगा सकते हो। मैं ऐसे तो बोल दिया ना, फिर तो बहुत बुरा हाल हो नहीं जाएगा। आप बता दो मैम, किससे मैं आपको सारे एक्सपीरियंस बताऊंगा, बेलन, झाड़ू, चप्पल और कुछ भी। सच में ऐसा होता है? हाँ मैम होता है, मैम होता है। होता था, अब नहीं तो मैम होता नहीं था। होता, मैम थर्ड फोर्थ तक होता था बस, थर्ड फोर्थ क्लास। अच्छा थर्ड फोर्थ तक, यानी थर्ड फोर्थ तक आप लोग शरारती भी थोड़ा ज्यादा थे। मैं आप कौन से कम है हमारी? अभी भी कम नहीं है? नहीं मैम अभी भी सर गुड, अच्छी बात है बेटा। मैम थोड़ी सी क्योंकि शरारतें तो करनी चाहिए ना, मतलब चाहे हाँ, वो मतलब। मैं उसी पॉइंट पे, एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि जब मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू होते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। तो शरारतें अच्छी बात है, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन शरारत एंड बदतमीजी। दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है। ठीक है, तो वो डिफरेंस जब हम भूल जाते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। क्योंकि आपकी जो भी शरारत है, जो भी आपकी मिसचीव्स है, वो तभी तक एक्सेप्टेबल है जब तक वो किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रही हैं, तब तक वो शरारतें होती हैं। जहां वो उस लाइन को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, वो बदतमीजी में आ जाता है। ठीक है, तो वो चीजें एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि शरारतें बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? वो तो बच्चों का ही राइट है, बट दे शुड नो द डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग अक्सर किस चीज का डिफरेंस भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट एंड फियर का। अगर सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, हम उसको लगने लगते हैं कि वो तो मुझसे डरता है या वो मुझे बहुत मानता है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगेन देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन रिस्पेक्ट एंड फियर। और जहां हम उसको फियर में लेके और उसको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है। So for
happiness, to ensure happiness in our life, we must be able to identify, recognize and realize all these small things. एक चीज और बताइए, आप हम लोगों को झूठ बोलने की जरूरत कब पड़ती है? अभी हमने ट्रस्ट की बात की थी। फैमिली में ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज द बेसिक वैल्यू दैट इज एसेंशियल टू मेंटेन हार्मनी इन फैमिली इज ट्रस्ट। बच्चों की कंप्लेन होती है, पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते, पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को ट्रस्ट नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमें झूठ बोलने की या कुछ भी छिपाने की जरूरत कब पड़ती है? मैम जब हम मतलब कोई ट्रस्ट ऐसा को मेंटेन करने के लिए कभी कभी नहीं, ट्रस्ट को मैम मेंटेन करने के लिए मैम 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 झूठ मैम कभी कभी मतलब ऐसा जब बोलना हम पड़ जाता है ऐसा ट्रस्ट को काम मेंटेन करते हैं करने जो के लिए। यस नेहा, मैम हम कभी मतलब कोई ऐसा काम करते हैं जो मम्मी पापा के अकॉर्डिंग गलत होता है, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है। जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो दें या जब हमारे मन में कुछ और चल रहा हो और सामने वाला कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो हम उस हिसाब से बोलें, तो शायद हम अपने मन की बात को दबा के या झूठ बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं उस कंडीशन में। झूठ बोलने भी अलग अलग तरीके से होते हैं। समटाइम्स वी टेल अ लाई इन ऑर्डर टू नॉट टू हर्ट अदर्स। कई बार हम झूठ कब बोलते हैं जब कि दूसरे को उससे बुरा ना लगे, दूसरे हर्ट ना हो। ठीक है, कई बार हम झूठ कब बोलते हैं जब हम अपनी कमियों को छिपाते हैं। कई बार हम झूठ कब बोलते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं। तो वो जो गलत है वो गलत दूसरे के लिए नहीं है, वो गलत सबसे पहले हमारे लिए, बिकॉज वी हैव दैट रियलाइजेशन दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। क्योंकि अगर आपके अकॉर्डिंग वो सही है, then you should have the courage, you should have the guts to justify that thing. ठीक है स्नेहा? यस मैम। अगर पेरेंट्स के लिए वो चीज गलत है तो या तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई करके देखिए कि फिर वो आपके लिए गलत है। ठीक है, उसको एनालाइज करिए। लेकिन अगर आपको भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग है कि हाँ वो चीज गलत है, तभी आप उसको छिपाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, देन जस्टिफाई दैट थिंग। बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर आप मतलब लाइफ में हम ये चीज करते रहेंगे कि दूसरे के अकॉर्डिंग गलत है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हर स्टेप पे आपको हेजिटेशन होगा कुछ नया करते हुए। यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग बिग, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के ऊपर एक छोटा सा केस है जो मैं आप लोगों को अभी एक दे रही हूँ, उसको आप इन फ्यूचर अपने व्यूज आप उस पर रख सकते हैं। There is an old lady and she's very sick at a critical stage, and doctors are not able to cure. She has only one son who lives abroad. Now that old lady is yearning for her son. वो चाहती है कि बस एक बार उसका बेटा आके उसको मिल जाए। She has one last desire to see her son before dying. Doctors know that अब वो जल्दी ठीक नहीं हो, जल्दी क्या ठीक हो नहीं पाएगी, लास्ट टाइम है। And doctors come to know that her son had already died in an accident 6 months back. Now doctors are hiding this thing from this old lady. वो उसको नहीं बताना चाह रहे क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही ये चीज उसको बताई जाती है, she will die immediately. She will not be able to tolerate that shock. वो उसको बेयर नहीं कर पाएगी शॉक को, तो वो उसको छिपा रहे हैं। Now you have to tell me, ये जो झूठ डॉक्टर्स उसको बता रहे हैं कि हाँ हमने उसको मैसेज कर दिया है, वो आ जाएगा, आने वाला होगा, पहुंच जाएगा, वो उसको कंसोल कर रहे हैं, तो क्या ये झूठ सही है या गलत है?
अभी आर अभी डॉक्टर्स बताना है डूइंग मैम। द राइट? नहीं, आप आराम से इसको सोच के और बाद में आप इसको बता सकते हैं, अभी नहीं। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी मैं आपको इसकी फोटो क्लिक करके, पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है, ये मैं फोटो क्लिक करके जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप आराम से इसके बारे में सोच के डिस्कस कीजिएगा अपने ग्रुप में, 2-2, 4-4 या 5-6 ग्रुप आप बना के उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप एक कॉमन व्यू पॉइंट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। Okay then. So that's all for the day, for this class, not for the day, because we have another class as well, and in that class we have to complete the syllabus. आगे की दोनों टॉपिक्स बहुत जल्दी हो जाएंगे, एंड थर्ड वन इज हार्मनी विद द नेचर, वो थोड़ा डिटेल में है बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, एक और पॉइंट था, लास्ट क्लास में मैंने वही चीज आपको बोली थी, लेकिन आप लोगों ने उस चीज को मुझे पॉइंट आउट नहीं किया। इन सेकेंड सेमेस्टर योर सिलेबस इज कम्युनिकेशन स्किल्स, and you should know that our communication should be clear, correct, concise, बहुत सारी इसकी characteristics हैं। Deliberately sometimes I use, अभी तो नहीं, खैर उस क्लास में मैं कई बार बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस में जानबूझ के, अगर मैं आपकी क्लास में पढ़ाऊंगी तो मैं बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस जानबूझ के गलत बोलती हूँ कि आप लोग उस चीज को आइडेंटिफाई करें, बट जनरली हम क्या क्या करते हैं, वी गो इन ए फ्लो। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, आइडेंटिफाई करते ही नहीं, गलत है या मैम, सही है, गलत इन द और सेंस गलत सीखते चले इमोशनली या जाते हैं ग्रामेटिकली? ग्रामेटिकली। अभी तो नहीं, लेकिन मैम वो तो हम वाइब समझ जाते हैं ना कि आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन वो गलत, कई बार क्या होता है बेटा, आप समझ तो जाते हैं, लेकिन आपको क्या बहुत सारी कंडीशंस में, सिचुएशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि ठीक है, सामने वाला ये बोल रहा है तो वो ठीक होगा, और हम उसी पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव, और नेटिव लैंग्वेज, इट इज नॉट अवर मदर टंग, इट इज सेकेंड लैंग्वेज। इसलिए हम इंडियनिज्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंडियनिज्म क्या है, ये भी आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे। व्हाट इज इंडियनिज्म? इंडियनिज्म बेसिकली एक, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, वी कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज इंडियनिज्म। वो उसमें स्ट्रक्चर की हो सकती है, कई बार ग्रामर की हो सकती है, कई बार inappropriate use of words हो सकते हैं, so different types of mistakes are there, and all these things are termed as Indianism. Anyway, in next class we'll do this. Okay, beta. No, See you in next class at 1:30.